आदाब नाजरीन, मैं हूं अफशा जबीन। तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका खैर मकदम है। आइए नजर डालते हैं सुर्खियों पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। गवर्नर तेलंगाना डॉक्टर तमिलिसाई ने बासरा ट्रिपल आईटी का किया दौरा। तलबा को दरपेश मसाइल का लिया जायजा, मसाइल की यकसुई का दिलाया यकीन। जंगांव में मेडिकल कॉलेज के क़याम के लिए वज़ीर आला KCR ने दी मंजूरी। रुकन असेंबली मत्ती रेड्डी को प्रगति भवन तलब करके जरूरी कागजात किए हवाले। हैंडलूम डे के मौके पर रियासती वज़ीर KTR का वीडियो कॉन्फ्रेंस से खिताब। हैंडलूम मसनूआत पर GST के नफाज पर मरकजी हुकूमत को बनाया तनकीद का निशाना। वज़ीर आज़म से चंद्रबाबू की मुलाकात, दोनों की मुलाकात से सियासी हल्कों में तजस्सुस। साइबराबाद पुलिस कमिश्नरेट में ट्रैफिक टास्क फोर्स खिदमात का आगाज। कमिश्नर पुलिस स्टीफन रविंद्रा ने दिखाई झंडी। शुमाली तेलंगाना में आइंदा 2 दिनों के दौरान औसत बारिश का इम्कान, महकमा मौसमियात ने की पेश क़यासी। इसरो के पहले SSLV मिशन ने टर्मिनल मरहले में डेटा गंवाया। इसरो के चेयरमैन डॉक्टर S सोमनाथ का बयान। अब खबरें तफसील से। गवर्नर तेलंगाना डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने जिला निर्मल में वाक़े बासरा ट्रिपल IT का दौरा किया। गवर्नर तमिलिसाई ने ट्रेन के जरिए बासरा पहुंची। इस मौके पर एडिशनल कलेक्टर P रामबाबू, वाइस चांसलर वेंकट रमन्ना, प्रिंसिपल सतीश कुमार, RDO लोकेश राव, DSP जीवन रेड्डी ने इन्हें गुलदस्ता पेश करके खैर मकदम किया। इस दौरान गवर्नर ने सरस्वती मंदिर के दर्शन किए। इस मौके पर मंदिर इंतजामिया की जानिब से गवर्नर का इस्तकबाल किया। बाद अज़ां गवर्नर तमिलिसाई ने ट्रिपल IT कैंटीन में तलबा के साथ मिलकर नाश्ता किया और लड़कियों और लड़कों के हॉस्टल की कैंटीन का दौरा किया और एक एक कमरे का मुआयना किया। उन्होंने तलबा की खैरियत दरियाफ्त की। उन्होंने कहा कि तलबा में इंतजामिया से गैर मुतमईन है। उन्होंने कहा कि उन्होंने वापस चांसलर को तलबा के मसाइल जल्द हल करने की हिदायत की है। तलबा के मसाइल हल हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि ट्रिपल IT में मसाइल एक एक करके हल होंगे। इस मौके पर गवर्नर ने ट्रिपल IT इंतजामिया की इमारत के सामने पौधे लगाने वाले तलबा के साथ तस्वीर खिंचवाई। First of all, I thank you all for waiting for such a long time to project the children's concern. And it's a great day for me because I could interact with the students, I could interact with the faculty members, and I could interact with the non-teaching staff, and I visited the mess, I visited the hostels. When the children actually interacted with me, I could meet the children separately, in groups and in personally also, particularly the girl children. I visited even not only the hostel rooms, the mess rooms, but all the washrooms also I visited. And I could find some of the problems which are very much concern. And the children's demand are very simple, and it is their right to expect those facilities in an institution like this. And I really appreciate the conviction of the students. One of the students told, we are from a weak background, but I am not a weak person. We may be from a non-bright families, but I want to become a bright student. They will from very economically compromised background. So I have appealed to the Vice Chancellor to have medical checkups, and I met the doctors also. So I think within some limited time I have completed maximum groups, and from today they are problems should be one by one solved, and I am really confident it could be done. And really their sufferings are should be dealt with much concern. After all, they are children. Madam, because we fought for our rights.
I have informed the Vice Chancellor. Please make the children free because after 2 years they have come to the university and they want to roam with our be friendly with their friends. So be cautious. They should be safe. But I also have, because some girl children also conveyed this with concern. They are not freely moving, so they have to move freely. That also I have assured. వాళ్ళు ఆందోళన చేసి 1 month దాటిన తర్వాత ఫుడ్ పాయిజన్ అయింది. Come and as a catalyst, I have learnt all the problems because I already told. So as a mother I came and I was working as an assistant professor also. So as a faculty also I can understand the problems. So I have learnt and as a doctor can diagnose things very clearly. No, I'm a good doctor also. हुकूमत तेलंगाना की जानिब से जिला मुस्तकिल जंगों के लिए मंजूरा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के क़याम और इमारतों की तामीर के बजट को आज वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने मंजूरी देते हुए जारी कर दिया और इस ज़िम्न में आज प्रगति भवन तलब करते हुए ज़रूरी कागजात रुकन असेंबली जंगों मित्ती रेड्डी यादगिरी रेड्डी को पेश कर दिया, जिसके बाइस उन्होंने हल्के के अवाम और ज़िले के अवाम की तरफ से वज़ीर आला KCR से इजहार तशक्कुर किया। रियासती वजीर पंचायत राज एराबल्ली दयाकर राव कुन, कानून साज कौंसिल डॉक्टर P राजेश्वर रेड्डी और जिला वरंगल के सीनियर रुकन असेंबली G वेंकट रमना रेड्डी भी इस मौके पर मौजूद थे, जिसके नतीजे में जिले के अवाम में खुशी व मसरत की लहर दौड़ गई। वजीर IT व बल्दी नस्ब व नक्श के तारक रामा राव ने कहा कि तेलंगाना के हैंडलूम हिंदुस्तानी सकाफती वर्से की अलामत है। रियासती हुकूमत के ज़ेर एहतमाम इतवार को पीपल्स प्लाजा में कौमी हैंडलूम डे मनाया गया, जिसमें रुकन कानून साज कौंसिल रामन्ना, वरंगल मेयर सुधा रानी और कई दिगर मौजरीन ने शिरकत की। इस मौके पर रियासती वजीर KTR ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने बुनकरों को कौमी हैंडलूम डे के मौके पर मुबारकबाद दी और इस दौरान हैंडलूम इंश्योरेंस प्रोग्राम का भी आगाज किया गया। इस मौके पर हैंडलूम वर्कर्स के लिए इंश्योरेंस स्कीम को मुतारिफ करने पर वजीर आला KCR का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि बाबर कौम महात्मा गांधी ने तहरीक आज़ादी में हैंडलूम मसनूआत को फरोग देने के लिए चरखा को एक अलामत के तौर पर लिया। महात्मा गांधी ने देसी मसनूआत को फरोग देने के लिए एक पहिया लिया और हमें याद दिलाया कि जब सूत काटा जाता था इस दिन पूरी कौम हरकत में आती थी। ताहम ये बदकिस्मती की बात है कि हिंदुस्तानी हुकूमत ने एक ऐसे वक्त में हैंडलूम मसनूआत पर GST नाफिज किया है जिस मुल्क की आज़ादी के 75 साल मुकम्मिल हो चुके हैं। స్వాతంత్రం వచ్చి 75 సంవత్సరాలు నిండుతున్న ఈ సంవత్సరంలో భారతదేశంలోని ఏ ప్రభుత్వము చేయని విధంగా మొట్టమొదటిసారి చేనేత మరియు మరనేత కళాకారులందరికీ కూడా ఈరోజు జీవిత బీమాను నేతన్నకు బీమా అనే బీమాను ప్రవేశపెట్టినందుకు వారికి గట్టిగా చప్పట్లతో మీ అందరి హర్షధ్వానాల మధ్యన వారికి మనందరి తరపున కూడా హృదయపూర్వకంగా KCR గారికి ధన్యవాదాలు అభినందనలు కూడా తెలియజేస్తా ఉన్నాను। ఈరోజు वजीर IT बल्दी नज़्म व नस्क के तारक रामा राव ने मुबारकबाद पेश की है। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म तारक रामा राव ने इस खसूस में ट्वीट करते हुए रियासत के बुनकरों के काम की सिताइश करते हुए कहा कि बुनकर हमारी रियासत के लिए हकीकी फ़ख्र हैं। उन्होंने तेलंगाना और मुल्क भर के बासलाहियत बुनकरों के कौमी दिन के मौके पर मुबारकबाद पेश की। साथ ही तारक रामा राव ने 1 मिनट 47 सेकेंड की वीडियो भी पोस्ट की। इस वीडियो जिसको अब तक कई अफराद ने देखकर सिताइश की। मैं बुनकरी के फन दस्ताकारी की सनत को हिंदुस्तान के कदीम तरीन और बड़ी पारचा जात की सनतों में से एक करार दिया गया। इसके जरिए कई मिलियन बुनकरों को रोजगार हासिल हो रहा है क्योंकि इस सनत के जरिए हाथ से बेहतरीन कपड़ा तैयार किया जाता है। तेलंगाना में TRS की हुकूमत इस शोबे की तरक्की के लिए बेतुकान काम कर रही है। हुकूमत की अहम फलाही स्कीमात के जरिए मुश्किल घड़ी में इन बुनकरों को काफी फायदा हुआ। हुकूमत की स्कीमात के जरिए काम माल की खरीदारी के सिलसिले में बुनकरों को सब्सिडी फराहम की जा रही है। साथ ही कर्ज की सहूलत भी इन बुनकरों को दी जा रही है। हुकूमत ऑनलाइन मार्केट की सहूलत के लिए
गोलकुंडा शॉपिंग पोर्टल की सहूलत भी इनको फराहम कर रही है। बुनकरों के कौमी दिन के मौके पर हुकूमत ने इन बुनकरों के लिए बीमा की सहूलत फराहम की है, जिसके जरिए अहले बुनकरों का अहाता किया जा रहा है। इनको 5 लाख रुपए के इंश्योरेंस की सहूलत फराहम की जा रही है। वजीर आला तेलंगाना के बुनकरी के शोबे के बारे में फिक्रमंद है और वो इस शोबे की तरक्की के लिए पाबंद अहद है। वजीर आजम मोदी के साथ आंध्र प्रदेश के साबिक वजीर आला एन चंद्रबाबू नायडू की कौमी दारुल हुकूमत नई दिल्ली में मुलाकात पर तजस्सुस पाया जाता है। दोनों रहनुमाओं ने मुल्क की आज़ादी के 75 बरस के मौके पर मुल्क गिर सतह पर मनाए जाने वाले आज़ादी का अमृत महोत्सव प्रोग्राम के सिलसिले में मुनक्किदा इजलास में मुलाकात की। मरकजी हुकूमत ने चंद्रबाबू नायडू को इस इजलास में शिरकत के लिए मद्दुआ किया था। दोनों लीडरों ने गुज़िश्ता 5 बरसों में पहली मरतबा एक दूसरे से मुलाकात की और बातचीत की। चंद्रबाबू से मोदी ने इस इजलास के बाद अलहदा मुलाकात की। यह मुलाकात तकरीबन 15 मिनट रही। इन दोनों रहनुमाओं में तकरीबन 15 मिनट की मुलाकात ने सियासी हलकों में तजस्सुस पैदा कर दिया है। हल्का असेंबली कोकटपल्ली के फतेहनगर डिवीजन से ताल्लुक रखने वाले सीनियर टीआरएस कायद मोहम्मद नसीर को रुकने असेंबली कोकटपल्ली एम कृष्णा राव ने हल्का असेंबली कोकटपल्ली के कोऑर्डिनेटर की हैसियत से नामजद किया है। मोहम्मद नसीर ने इन्हें कोऑर्डिनेटर नामजद किए जाने पर कॉरपोरेशन सतीश गौड़, अक़लियती सदर मोहम्मद सलाउद्दीन और मोहम्मद नबी साहब और मोहम्मद ज़हीरुद्दीन और विश्वनाथ के हमरा रैली शक्ल में वजीर सेहत हरीश राव की क़यामगाह पहुंचकर इनसे मुलाकात की। इस मौके पर मोहल्ले के नौजवानों की जानिब से मोहम्मद नसीर की शालपोशी और गुलपोशी की गई। मोहम्मद नसीर ने मीडिया से बात करते हुए इन्हें कोऑर्डिनेटर नामजद किए जाने पर वजीर सेहत हरीश राव, वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और रुकने असेंबली एम कृष्णा राव कॉर्पोरेटर सतीश गौड़ से इजहार तशक्कुर किया। अल्लाह बरकातहू। सबसे पहले अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ मैं। अल्लाह ताला मेरे को छोटी जिम्मेदारी से बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपे और टीआरएस पार्टी का उसके साथ साथ हमारे केसीआर साहब, केटीआर साहब और जो है सो मेरे हर चीज़ से मेरे साथ रह के चले। सो हमारे कृष्णाराव साहब, माधवराम कृष्णाराव साहब एमएलए कुकटपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी और जो है सो मेरे छोटे भाई के सर का मेरे हमेशा मेरे साथ रहने वाले मेरे बंडाला सतीश गौड़ साहब और नरेंद्राचारी साहब। उसके साथ साथ हमेशा मेरे हर कदम पे कदम मिलाने निकाला के चलने वाले हमारे ज़हीर भाई और मेरे वालिद साहब और बहुत सारे मेरे यहाँ पे है मेरे चाहने वाले और सबका मैं शुक्रगुजार हूँ। यहाँ तक कि उन्होंने कि और जो है सो हमारे फतेहनगर डिवीज़न प्रेसिडेंट मोहम्मद सलाउद्दीन साहब, उन लोगों का सबका शुक्रगुजार हूँ मैं। रुकन असेंबली जंगौ मित्ती रेड्डी यादगिरी रेड्डी ने आज यहां अपने कैंप दफ्तर में मुनक़िदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने इंतखाबी मुहिम के दौरान जिला और हल्का जंगौ के अवाम से सरकारी मेडिकल कॉलेज मंजूर करने का इंतखाबी वादा किया था, जिसको उन्होंने पूरा करते हुए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जंगौ की मंजूरी दी और इमारतों की तामीर के लिए 190 करोड़ रुपए मख्तस करते हुए फौरी जारी कर दिया, जिस पर उन्होंने मुकामी अवाम की तरफ से वजीर आला केसीआर का शुक्रिया अदा किया और कहा कि मरकजी हुकूमत की पॉलिसी साज इदारे नीति आयोग ने नई रियासत तेलंगाना में मिशन भगीरथ के तहत मुकामी अवाम को पीने के लिए साफ पानी फराहम करने की गर्ज से रियासत तेलंगाना को 20,000 करोड़ रुपए और मिशन काकतिया के जरिए तालाबों से मिट्टी की निकासी और गहराई बढ़ाने के लिए मजीद 5,000 रुपए मंजूर करने का हुकूमत हिंद से सिफारिश की थी। ताहम मरकजी हुकूमत ने मज़कूरा दोनों सिफारिशों को नजरअंदाज करते हुए रियासत तेलंगाना के मफादात को न सिर्फ मजरूर किया बल्कि रियासती अवाम की हक तलक़ी की है। उन्होंने रियासत के भारतीय जनता पार्टी के कायदीन बिलखुसूस बंडी संजय कुमार सदर रियासती कमेटी से वजाहत करने और मरकजी हुकूमत पर दबाव बनाने के अलावा मज़कूरा हुकूमत को हासिल करने में हुकूमत तेलंगाना से ताउन करने का मशवरा दिया। इस मौके पर सदर जिला परिषद संपत रेड्डी, सदर बल्दिया पी जमुना मोहम्मद अब्दुल समद, काउंसलर माउन रुकने बल्दिया अलहाद मोहम्मद मसीहुर रहमान, जाकिर पटेल और दूसरे कायदीन भी मौजूद थे। సంతోషపడి దీవించిండు. ఏదేమైనా మీది ఈ దశలో మొదటి దశలో ఇస్తా అని చెప్పి జీవో ఇచ్చిన వారు
190 కోట్లతోటి బడ్జెట్తో పాటు ముత్తిరెడ్డి గారి నాయకత్వం, కేసీఆర్ గారి నాయకత్వం. साइबराबाद पुलिस कमिश्नरिएट हुदूद में ट्रैफिक टास्क फोर्स की खिदमत का आगाज अमल में आया। इस मौके पर कमिश्नर पुलिस साइबराबाद स्टीफन रविंद्र ने ट्रैफिक टास्क फोर्स की गाड़ियों को झंडी दिखाकर आगाज किया। इस मौके पर मुनक़दा तकरीब से खिताब करते हुए कमिश्नर पुलिस साइबराबाद स्टीफन रविंद्र ने कहा कि साइबराबाद पुलिस कमिश्नरिएट के हुदूद में बढ़ती हुई ट्रैफिक को मद्देनजर रखते हुए साइबराबाद पुलिस कमिश्नरिएट में साइबराबाद ट्रैफिक टास्क फोर्स का क़याम अमल में लाया गया है। उन्होंने कहा कि ये टास्क फोर्स साइबराबाद ट्रैफिक डीसीपी श्रीनिवास राव की निगरानी में काम कर रही है। इस टास्क फोर्स के लिए 6 मोटरसाइकिलें खुसूसी तौर पर बनाई गई है। इस टास्क फोर्स में कुल 12 कांस्टेबल होंगे। हर एक मोटरसाइकिल पर 2 ओहदेदार के हिसाब से जुमला 12 पुलिस कांस्टेबल्स को ड्यूटी पर मुतय्यन किया गया है। ये टास्क फोर्स टीम्स औकात के दौरान भारी ट्रैफिक वाले इलाकों में गश्त करती है और ये ट्रैफिक टास्क फोर्स पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर पुलिस के साथ मिलकर काम करती है। वो खास तौर पर साइबराबाद ट्रैफिक टास्क फोर्स पुलिस अपने 2 पहियों गाड़ियों के पब्लिक एड्रेस सिस्टम के जरिए ट्रैफिक से मुतालिक मसाइल पर अवाम को बाकायदगी से मुनासिब हिदायत देती है। महबूबनगर जिले के एसपी वेंकटेश्वरलो ने कहा कि एसआई प्रीलिमिनरी इम्तिहानात के मौके पर पुलिस की जानिब से सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए। जिला एसपी ने महबूबनगर टाउन में वाक़े एनटीआर डिग्री वुमेंस कॉलेज में मुनक़दा एसआई इम्तिहान का मुआयना किया। उन्होंने कहा कि जिले में कायम किए गए 15 मराकिज़ में सख्त इंतजाम किए गए। इस मौके पर इम्तिहान हॉल में इलेक्ट्रॉनिक अशिया की इजाज़त नहीं दी गई। ज़ेरॉक्स और नेट सेंटर बंद कर दिए गए थे और इम्तिहानी मराकिज़ के अतराफ व अकनाफ इलाकों में दफा 144 नाफिज कर दिया गया था। సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ రిక్రూట్మెంట్ ఎగ్జామినేషన్ ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామ్ జరుగుతుంది. మహబూబ్నగర్ జిల్లాలో 8300 మంది అభ్యర్థులు ఎగ్జామ్ రాయడానికి దరఖాస్తు చేసుకున్నారు. 15 సెంటర్లలో మహబూబ్నగర్ పట్టణంలో ఈ ఎగ్జామ్ను కండక్ట్ చేస్తున్నాము. ప్రతి ఒక్కరిని కూడా 1 అవర్ ముందే మేము అలో చేస్తున్నాము. ఎట్లాంటి ఎలక్ట్రానిక్ గ్యాడ్జెట్స్ కానీ లేకపోతే ఇతర ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాలను కానీ ఈవెన్ సైంటిఫిక్ క్యాలిక్యులేటర్స్ ని కూడా అలో చేయనీయట్లేము. మొబైల్ ఫోన్లను కూడా అలో చేయనీయట్లేము. అదేవిధంగా అభ్యర్థులకు గత 4-5 రోజుల ముందు నుంచే కూడా అవగాహన కల్పిస్తూ మీడియా ద్వారా, కరపత్రాల ద్వారా కూడా సెంటర్స్ దగ్గర మేము అవగాహన కల్పించాము. ప్రతి ఒక్కరు కూడా హాల్ టికెట్ పైన ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకొని రావాలని కూడా చెప్పడం జరిగింది. एक चौंका देने वाले वाकये में 3 साला लड़की को इसके बेरहम और दरिंदा सिफत बाप ने शदीद तौर पर जोदोकोप किया, जिसके नतीजे में ये लड़की शदीद जख्मी हो गई। ये वाकया हैदराबाद के सैफाबाद पुलिस स्टेशन के हुदूद में पेश आया। इस लड़की को उस्मानिया अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो जिंदगी की लड़ाई लड़ रही है। ये 3 साला मासूम लड़की सकीना अपने वालिदीन सना फातिमा और बासित खान के साथ एसी गार्ड इलाके में रहती है। सैफाबाद पुलिस ने कहा कि इस जोड़े को 4 बेटियां हैं और सकीना तीसरी बेटी है। हफ्ते की शाम तमाम अरकान खानदान मकान में थे कि बासित ने देखा कि सकीना काफी देर तक वॉशरूम में थी। बासित वॉशरूम में गया और इसने लड़की की बुरी तरह पिटाई कर दी। लड़की के चीखों पुकार पर इसकी मां ने इसको बचाने की कोशिश की, ताहम बासित ने इसको धकेल दिया और लड़की को पटक दिया। किसी तरह लड़की को इसकी मां ने बासित के हाथ से छीन लिया और बेडरूम में ले गई। जब लड़की सो रही थी तो इसकी मां ने देखा कि लड़की के मुंह से झाग निकल रहा है। इसको फौरी तौर पर इलाज के लिए उस्मानिया अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने कहा कि इस मासूम के सर पर गहरे जख्म आए हैं। पुलिस को इस बात की इतला दी गई, जिसके बाद पुलिस वहां पहुंची, जिसने लड़की की मां से शिकायत लेते हुए मामला दर्ज कर लिया। सना के रिश्तेदारों ने बताया कि साबिक में भी बासित ने लड़की की बुरी तरह पिटाई की थी। पुलिस ने शुबा जाहिर किया कि बासित जहनी मसाइल का शिकार है। बावसूख जराये के मुताबिक जख्मी लड़की इलाज के दौरान जख्मों से जानबर ना हो सकी।
जिला वनपट्टी के कोतागुडम मंडल के कनीमेटा गांव के करीब एक नामालूम गाड़ी ने एक कार को टक्कर मार दी। बताया गया कार को टक्कर मारने वालों की कारों में डीजल के डब्बे, डीजल चोरी करने वाले गरवा के तौर पर निशानदेही की गई। चोरों की टोली कार वहीं छोड़कर फरार हो गई। हिंदुस्तानी महकमा मौसमियात ने 8 और 9 अगस्त को तेलंगाना के शुमाली इजला के लिए ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी कर दिया है। ऑरेंज अलर्ट शदीद तरीन बारिश की निशानदेही करता है, जबकि रेड अलर्ट शदीद बारिश की निशानदेही करता है। महकमा मौसमियात ने कहा है कि शुमाली मगरिब खलीज बंगाल में हवा के कम दबाव की वजह से ये सूरत हाल पैदा हुई है। इजला बशमूल कोमर भीम, आसिफाबाद, मंचिर्याल, निजामाबाद, जयशंकर, भोपालपल्ली, भद्राद्री, कोतागुडेम, खम्मम, महबूबाबाद, नलगुंडा, सूर्यापेट, वरंगल, जंगांव और सिद्दीपेट के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आदिलाबाद, निर्मल, जगतियार, करीमनगर, पदापल्ली और कामारेड्डी जिला के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। शहर हैदराबाद में महकमा मौसमियात ने हल्की ता औसत बारिश की पेशगोई की है। इसरो के चेयरमैन डॉक्टर एस सोमनाथ ने कहा है कि छोटे सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SSLV ने आज सुबह 9 बजे उड़ान भरने के कुछ बाद तकनीकी खराबी की वजह से अपना कुछ डेटा गंवा दिया। डॉक्टर सोमनाथ ने SSLV के उड़ान भरने के बाद मिशन कंट्रोल सेंटर के साइंसदानों से खिताब करते हुए कहा कि SSLV के 3 मराहिल की अलहदगी मामूल के मुताबिक रही और उसने तौक़े के मुताबिक कारकर्दगी का मुजाहरा किया, लेकिन बाद में इसका डेटा ज़ाया हो गया। उन्होंने कहा कि SLV की पोजीशन जानने के लिए इदाद-ओ-शुमार एकजा किए जा रहे हैं। इससे कबल अली सुबह 2 बजे शुरू हुई उल्टी गिनती के 7 घंटे बाद सुबह 9:18 पर SLV ने SDSC 4 रेंज से कामयाबी के साथ उड़ान भरी। इस मौके पर इसरो के चेयरमैन डॉक्टर एस सोमनाथ, इसरो के साबिक चेयरमैन डॉक्टर के राधाकृष्णन और मिशन कंट्रोल सेंटर के साइंसदानों मौजूद थे। जैसे ही रॉकेट ने उड़ान भरी, नाजनीजी रिंग के धुएं का एक गुब्बार आसमान पर उड़ता हुआ नजर आया और ऐसा लगता जैसे इसने जमीन को हिलाकर रख दिया हो। SSLV 34 मीटर लंबा है, जो SLV से तकरीबन 10 मीटर कम है। PSLV के 2.8 मीटर के मुकाबले इसका कद्र 2 मीटर है। SSLV का लिफ्ट ऑफ मास 120 टन है, जबकि PSLV का वजन 320 टन है, जो 1800 किलोग्राम तक आलात ले जा सकता है। Good morning, all of you. The maiden flight of SSLV D1 just now completed. The SSLV's all stages performed as expected. The first stage performed and separated. The second stage performed and separated. The third stage also performed and separated. And we had in the terminal phase of the mission some data loss is occurring, and we are analyzing the data. And we will come back on the status of the satellites and as well as the vehicle performance soon. So until then, please bear with us that we are currently in the process of analyzing the data to conclude on the final outcome of the mission with respect to a stable orbit achieved or not. So please wait and we'll come back. Thank you so much for your patient viewing of this live telecast from SDSC Shar. Thank you so much once again. हिंदुस्तानी हवाबाजी के शोबे में नई अकासा एयरलाइन ने आज मुंबई से अहमदाबाद के लिए पहली तिजारती परवाज का आगाज किया। शहरी हवाबाजी के वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया और शहरी हवाबाजी के वजीर ममलिकती जनरल VK सिंह ने पहली परवाज को हरी झंडी दिखाई। शहरी हवाबाजी के सेक्रेटरी राजीव बंसल और ज्वाइंट सेक्रेटरी उषा पाधी सिंधिया और जनरल सिंह के साथ मुंबई हवाई अड्डे पर मुनक्किदा एक मुख्तसर तकरीब में वीडियो लिंक के जरिए शामिल हुए, जबकि एयरलाइन के बानी समझे जाने वाले मारूफ सनतकार राकेश CEO ने दुबे मुंबई हवाई अड्डे पर मौजूद थे। अकासा एयरलाइन के टिकटों की फरोख्त 22 जुलाई को मुंबई, अहमदाबाद, बेंगलुरु और कोची से शुरू हुई थी। इब्तदाई तौर पर अकासा एयरलाइन मुंबई और अहमदाबाद के दरमियान एक हफ्ते के लिए 28 परवाजें चलाई गईं और 13 अगस्त से कोची और बेंगलुरु के दरमियान हफ्ते में 28 परवाजों के साथ सर्विस शुरू करेगी। अकासा एयरलाइन का बैटरा 72 तैयारों पर मुश्तमिल होगा। इस मौके पर मिस्टर सिंधिया ने कहा कि ये एक तारीखी मौका है
एक तवील अरसे के बाद एक देसी एयरलाइन हिंदुस्तानी फिजाई हुदूद में दाखिल हो रही है। जमहूरियत पसंदी का एक और सबूत है। उन्होंने कहा कि एक वक्त था जब 130 करोड़ की आबादी में से सिर्फ 0.2% लोग हवाई जहाज में सफर करते थे, लेकिन वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने यह ख्वाब देखा है कि हवाई चप्पल पहनने वाले भी हवाई जहाज में उड़ सकें। इसके लिए मुल्क में हवाई सफर के बुनियादी ढांचे में तोसी की जा रही है। उम्मीद है कि आने वाले वक्त में तकरीबन 40 करोड़ लोग हवाई सफर करेंगे। जनरल सिंह ने अपने खिताब में नई एयरलाइन के आगाज को एक तारीखी मौका करार दिया और उम्मीद जाहिर की कि यह तैयारा मुसाफिरों की उम्मीदों पर पूरा उतरेगा। अकासा एयरलाइन की हिकमत अमली कम ईंधन इस्तेमाल करने वाले हवाई जहाज खरीद कर शहरियों को सस्ती हवाई खिदमत फराहम करना है। हिंदुस्तानी बॉक्सर अमित पंघल और नीतू ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में अपने अपने फाइनल जीतकर हिंदुस्तानी बॉक्सिंग के तलाई तमगे जीत लिए। अमित पंघल ने मर्दों के 51 किलोग्राम के फाइनल में इंग्लैंड के किरण को शिकस्त देकर तलाई तमगा जीता। गोल्ड कोस्ट 2018 गेम्स में चांदी का तमगा जीतने वाले अमित ने मैच के आगाज से ही किरण पर घूंसों की बारिश कर दी और पहले राउंड में ही अपने हरीफ को मुत्तादा चोटें पहुंचाई। दूसरे राउंड में अपनी शानदार कारकर्दगी को जारी रखते हुए अमित ने एक तरफा तौर से 4.0 से तलाई तमगा जीता। दूसरी जानिब नीतू ने ख्वातीन के 48 किलोग्राम के फाइनल में मेजबान इंग्लैंड की डेमी जेट को शिकस्त देकर तलाई तमगा जीता। 2 बार की आलमी युद्ध चैंपियन नीतू ने अपने हरीफ को एक तरफा खेल से 4.0 से शिकस्त दी। मणिपुर हुकूमत ने फर्जी खबरों और अफवाहों को रोकने के लिए इतवार से 5 दिन के लिए मोबाइल इंटरनेट सर्विस पर पाबंदी लगा दी है। स्पेशल सेक्रेटरी दाखिला एच ज्ञान प्रकाश ने हफ्ते को जारी एक हुक्मनामे में कहा कि मणिपुर के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने इन्हें रियासत में तशद्दुद के बारे में मुताला किया और कहा कि अगर हालात को काबू में नहीं लाया गया तो सूरत हाल मजीद बिगड़ सकती है। ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन मणिपुर ATSUM ने रियासत में माशी नाकाबंदी नाफिज कर दी है और पुरतशद्दुद वाकयात के एक सिलसिले में हफ्ते को दफातर पर हमला किया गया, जिसमें 3 गाड़ियों को जलाना भी शामिल है। ATSM ने मणिपुर कानून साज असेंबली में खुद मुख्तार जिले कौंसिल बिल को मुतारिफ कराने का मुतालबा किया और 2 बिल पेश किए जा चुके हैं और एक को मंजूर किया गया है। पुलिस ने नाकाबंदी करने पर ATSM के 5 अरकान को गिरफ्तार किया है। प्रकाश ने कहा कि इस जुर्म ने रियासत में फिरका वाराना सूरत हाल और गैर मुस्तहकम अमन व अमान की सूरत हाल पैदा कर दी है। कुछ समाज दुश्मन अनासिर इसकी तस्वीर, इश्तियाल अंगेज तकारीर और नफरत अंगेज वीडियो पैगाम सोशल मीडिया पर अवाम को भेज रहे हैं। सोशल मीडिया अवाम में अफवाहें फैलाने का एक बड़ा जरिया बन गया है, जिसकी वजह से रियासत में अमन व अमान की सूरत हाल बुरी तरह मुतासिर हो सकती है। उत्तराखंड के कमाऊन डिवीजन के चंपावत में बारिश की वजह से लैंडस्लाइडिंग के बाइस पहाड़ियों को मैदानी इलाकों से जोड़ने वाली चंपावत टॉनिकपुर कौमी शहरा बंद कर दी गई है। इस वक्त डिवीजन में कुल 24 देही सड़कें बंद है। कमाऊन के पहाड़ी इलाकों में वक्फे से बारिश हो रही है, जिसकी वजह से चंपावत जिले के सवाला में चंपावत टोंकपुर कौमी शहरा पर हफ्ते की देर रात लैंडस्लाइडिंग शुरू हो गई। देखते ही देखते भारी मलबा सड़क पर आ गया, जिसकी वजह से रास्ते पर ट्रैफिक रोक दी गई, जिसके बाद 2 दराज की गाड़ियां फंस गई। इंतजामिया भी फौरी तौर पर हरकत में आ गई और मलबा हटाने के लिए JCB मशीनों को इस्तेमाल किया गया। स्वाला में मलबा हटाने का काम जंगी बुनियादों पर जारी है। चंपावत, पथूरागढ़ और नैनीताल इजला में मट्टी के तोड़े गिरने की वजह से कुल 24 सड़कें बंद हैं। इनमें से ज्यादातर देहातों को मिलाने वाली सड़कें हैं। नैनीताल वाली हाईवे फिलहाल बंद है। गुज़िश्ता माह 29 जुलाई को पाइन के करीब लैंडस्लाइडिंग की वजह से सड़क को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया था और सड़क का एक बड़ा हिस्सा मुनहदिम हो गया था। इंतजामिया की जानिब से सड़क को खोलने के लिए जंगी बुनियादों पर काम जारी है। खास बात यह है कि चीन की सरहद को जोड़ने वाले तमाम सरहदी रास्ते ट्रैफिक के लिए खुले हैं। 12 सड़कें लैंडस्लाइडिंग की वजह से बंद हैं। इसी तरह बागेश्वर में 7 और नैनीताल में 5 सड़कों पर ट्रैफिक ठप है।
चरसू-ओंती पूरा कश्मीर में आज 130 बटालियन सीआरपीएफ की जानिब से एक मुफ्त तिब्बी कैंप का आगाज किया गया, जिसमें मुकामी लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। कैंप के दौरान लोगों में मुफ्त मेडिकल हेल्थ चेकअप के साथ साथ मुफ्त अदवियात तकसीम की गई। इस मौके पर सीआरपीएफ कमांड हलाल फेरोज, डिप्टी कमांडेंट और महेश यादव यूनिट के दिगर अफसरान के अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस के कई अफसरान भी कैंप में मौजूद रहे। मीडिया से बात करते हुए कमांडेंट फेरोज ने कहा कि सीआरपीएफ हमेशा से लोगों की खिदमत करती रही है और इसी तरह के प्रोग्रामों के जरिए वो आगे भी लोगों की खिदमत करते रहेंगे। हमेशा से लोगों की खिदमत करती रही है और अमन का चिराग, खिदमत का चिराग लेके चलती रही है। इसी ज़िमन में आज चरसू की मुक़द्दस सरज़मीन पे सीआरपीएफ आई है, खिदमत की उस रोशनी को लेकर जहां हम लोगों के शाना बशाना हैं, एक मजबूत चरसू की तश्कील करने के लिए। हिफ़्ज़ान सेहत एक बहुत ही अहम मुद्दा है। गुरबा और मसाकीन को अद्वियात नहीं मिल पाती है, ना अच्छे डॉक्टरों की दस्तयाबी हासिल हो सकती है। इसी ज़िमन में जब चरसू की आवाम ने हमसे रिक्वेस्ट किया कि आप यहाँ एक तिब्बी कैंप लगाएं ताकि लोग इससे इस्तेफादा कर सकें, इसी सिलसिले में आज हम यहाँ आए हैं। लोगों की खिदमत और बड़े पैमाने पे लोग शामिल हो रहे हैं, जिनमें बच्चे, बूढ़े, गुरबा और मसाकीन हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा आगे भी लगाते रहेंगे और लोगों की खिदमत करते रहेंगे। मॉडर्न पब्लिक स्कूल डाटसरा तराल कश्मीर में क़िराअत व नात मुकाबले का इनेकाद किया गया, जिसमें इलाके तराल के मुख्तलिफ स्कूलों से आए हुए तलबा आलिमों की एक अच्छी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर कई तलबा आलिमों ने अपने अपने मखसूस अंदाज में तिलावत कुरान पाक और नात पाक पेश करके महफिल की रौनक बढ़ा दी। बाद में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले बच्चों में इनामात तकसीम किए गए। प्रोग्राम में मुकामी जोनल एजुकेशन ऑफिसर मेहमान खुसूसी के तौर पर मौजूद रहे। मॉडर्न पब्लिक हाई स्कूल का तालिब इल्म हूँ और आज हमारे स्कूल में क्विज और नात कंपटीशन का प्रोग्राम हो रहा था और हमारे स्कूल में ऐसे प्रोग्राम हो रहे हैं। हमारे स्कूल में आज तकरीबन 16 स्कूल आए थे और जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और हमारी लोगों से ये अदबन गुजारिश है कि वो हमें इन प्रोग्रामों में साथ दे और हम दूसरे जो हमारे लोकेलिटी में स्कूल आते हैं, हम उनसे ये कह रहे हैं कि आप ये प्रोग्राम मुनक्किद करें और ऐसे और लोगों से कह रहे हैं हमें इन प्रोग्राम में मदद करें। जम्मू कश्मीर के जिले पूंछ के एक सरहदी गांव में सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक जंग आलूदा ग्रेनेड को बरामद करके इसको नाकारा बना दिया। सरकारी जराये ने बताया कि पूंछ के कॉलर कौतिल गांव में मुकामी लोगों ने एक ग्रेनेड देखा और पुलिस को इस बारे में मुताला किया। उन्होंने कहा कि इत्तला मौसूल होते ही पुलिस और फौज की एक टीम जाए मौके पर पहुंची और ग्रेनेड को बगैर कोई नुकसान पहुंचाए नाकारा बना दिया। वादी कश्मीर में मौसमी सूरत हाल में बतदरीज बेहतरी वाक़ होने के साथ ही शबाना दर्जे हरारत एक बार फिर मामूल से ज्यादा रिकॉर्ड होने लगा है। महकमा मौसमियात के एक तर्जुमान के मुताबिक वादी में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम मजमूई तौर पर खश्क रहने का इम्कान है। उन्होंने कहा कि इस दौरान कहीं कहीं हल्के दर्जे की बारिश मुतवक्के है। इनका कहना था कि वादी में अगले 2 दिनों के दौरान मौसम की यही सूरत हाल कायम रहने का इम्कान है। इधर मौसम में बेहतरी वाक़ होने के साथ ही शबाना दर्जे हरारत एक बार फिर मामूल से ज्यादा रिकॉर्ड होने लगा है। गर्माई दारुल हुकूमत श्रीनगर में कम से कम दर्जे हरारत 18.6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। गुलमर्ग में कम से कम दर्जे हरारत 10.2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। वादी के दूसरे मशहूर सयाहती मुकाम पहलगाम में कम से कम दर्जे हरारत 13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ। यूनियन टेरिटरी लद्दाख में कम से कम दर्जे हरारत 10.02 और कारगिल में 16.8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। दर असना सूबा जम्मू में कम से कम दर्जे हरारत 24.9 रिकॉर्ड किया गया। बटूट में 18.7, बनहाल में 17.4 और बद्रवाह में 18.8 रिकॉर्ड हुआ।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के सदर और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के 9 पार्लिमानी नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात लड़ने के फैसले से कौमी खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान होने का खदशा जाहिर किया गया है। ये नशिस्तें पाकिस्तान के कौमी पार्लियामेंट के स्पीकर की जानिब से PTI के कुछ अरकान असम्बली के इस्तीफे मंजूर किए जाने के बाद खाली हुई हैं। अगर इमरान खान इन तमाम सीटों पर इलेक्शन जीत जाते हैं तो इन्हें एक के अलावा बाकी सीटों से इस्तीफा देना होगा और वहां दोबारा ज़िमनी इलेक्शन कराने होंगे। एक अंदाजे के मुताबिक किसी हल्के के इंतखाब में कम से कम अखराजात 5 से 9 करोड़ रुपए के लगभग होने का इम्कान है। इसके साथ ही हसास और दूर दराज इलाकों में ये लागत तकरीबन 10 करोड़ रुपए होगी। इमरान खान पहले ही से कौमी पार्लियामेंट के रुकन हैं। साल 2018 में इमरान खान ने 5 हल्कों इस्लामाबाद, बनू, कराची, मयानवाली और लाहौर से इलेक्शन लड़ा और इन तमाम नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की। उन्होंने मयानवाली की नशिस्त पर करार रखी और बाकी 4 नशिस्तों से इस्तीफा दे दिया था। आखिर में सुर्खियां फिर एक बार। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी, चारमीनार रोड, हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी, चारमीनार रोड, हैदराबाद। गवर्नर तेलंगाना डॉक्टर तमिलिसाई ने बासरा ट्रिपल IT का किया दौरा। तलबा को दरपेश मसाइल का लिया जायजा, मसाइल की यकसुई का दिलाया यकीन। जंगांव में मेडिकल कॉलेज के क़याम के लिए वज़ीर आला KCR ने दी मंजूरी। रुकन असेंबली मत्ती रेड्डी को प्रगति भवन तलब करके जरूरी कागजात किए हवाले। हैंडलूम डे के मौके पर रियासती वज़ीर KTR का वीडियो कॉन्फ्रेंस से खिताब। हैंडलूम मसनूआत पर GST के नफाज पर मरकजी हुकूमत को बनाया तनकीद का निशाना। वज़ीर आज़म से चंद्रबाबू की मुलाकात, दोनों की मुलाकात से सियासी हलकों में तजस्सुस। साइबराबाद पुलिस कमिश्नरेट में ट्रैफिक टास्क फोर्स खिदमात का आगाज। कमिश्नर पुलिस स्टीफन रविंद्रा ने दिखाई झंडी। शुमाली तेलंगाना में आइंदा 2 दिनों के दौरान औसत बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात ने की पेश क़ियासी। इसरो के पहले SSLV मिशन ने टर्मिनल मरहले में डेटा गंवाया। इसरो के चेयरमैन डॉक्टर S सोमनाथ का बयान। तेलंगाना एक्सप्रेस में अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।